Okay, so I have written down the topic, heating effect of metal carbonate or metal hydroxide. Yes, Right? sir. Okay, so in general, write down, in general, when we heat metal carbonate, here the metal is shown by M. Okay, so when we heat metal carbonate, then we will get metal oxide plus carbon dioxide. Okay, and don't worry about the exception, because I will tell all the exception that can exist. Okay, so you don't have to worry about that. Write down, in general, when we heat metal carbonate, then it will give metal oxide plus carbon dioxide. And whenever we heat metal hydroxide, then it is going to give us metal oxide plus water. Okay, Yes, sir. yeah, Okay, sir. so means this is generally, but now write down some exceptions and be assured that there are only this number of exception. मतलब इससे ज्यादा exceptions नहीं है. तो एक्सेप्शन में हम लोग पहला एक्सेप्शन लिखेंगे. द फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, here you can see that lithium is not there, so always be cautious that the carbonates of sodium to cesium, when we heat them, then we are not going to get metal oxide and carbon dioxide, we are going to get melt. So what is melt? Yeah, means whenever we heat, suppose that lithium carbonate, then it will give us lithium oxide and plus carbon dioxide. But whenever we are going to heat sodium carbonate, then it's not going to give us sodium oxide and carbon dioxide. But means आप कितना भी हीट कर लो, तो वो लास्ट में क्या होगा ना कि मेटल्स को अगर आप ज्यादा से ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होने लगेगा, तो वो एक दूसरे में मिल जाएगा. ठीक है ना, मतलब कि वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, उसी को हम लोग मेल्ट बोलते हैं. तो जब भी हम लोग ज्यादा टेम्परेचर, खूब ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे, तो जैसे अगर लोहा भी है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, मीन्स इट्स स्टार्ट फ्लोइंग. ओके, so that state is called melt. And for better understanding of melt, you should wait for metallurgy chapter. but yeah, melt उसी को कहते हैं, वहां भी मैं अरे यही तो बताऊंगा. अपन किया हुआ अभी. यस, सर एक तो बहुत फेमस है वो 10 और सोल्डरिंग वायर होता है ना. can you please write in the chat section, means I'm not able to hear you means clearly. Wire of tin and lead, yeah, yeah, they also melt. जब हम लोग सोल्डिंग करते हैं तो वो लोग वो मेल्ट हो जाते हैं वो. या मतलब मेल्ट का एक अच्छा एग्जांपल वो भी हो सकता है. या नाउ राइट डाउन द सेकंड एक्सेप्शन. इट इज दैट the hydroxides of sodium to cesium are also going to give us melt upon heating. So if you are able to see my notes, then just copy that part. Done. Okay, so now write down the third exception. It is that the carbonates and hydroxides of silver upon heating will give us metal. क्या बात है.
मतलब कि सिल्वर के अगर कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को सिल्वर मिलने वाला है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई वी आर गेटिंग सिल्वर? Because the silver oxide is not thermally stable. Silver oxide is thermally unstable. So आप लोग ऐसा लिखना कि सिल्वर के कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे हम लोग को मेटल मिलेगा, और यहाँ पे सिल्वर के नीचे ऐसे एरो देके एक ऐसा ही गोला बना लेना, आप लिखना Ag2O, HgO, मर्करी ऑक्साइड. ये दोनों जो होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं. मैंने एक बात बोला था, आप लोगों को पता नहीं याद होगा कि नहीं, Ag, Pb और Hg ये एकदम पकिया यार है. वेयर मतलब जहां भी ये आएगा वहां ये भी आएगा, वहां ये भी आएगा. ओके, मतलब मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह पे. ओके, सो आई थिंक यू हैव डन, मतलब ये हो गया, ठीक है ना. बट हेयर यू हैव टू बी, मतलब यहाँ पे क्लियर रहना है कि सिर्फ सिल्वर लिखा हुआ है, बाकी कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. Yes, sir. ओके, सो मीन्स जस्ट राइट डाउन सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको खुद से लिखना है. बोलो. Yes, sir. डोलोमाइट को हीट करने पे क्या मिलेगा? डोलोमाइट का फॉर्मूला बताता हूँ, MgCO3 डॉट CaCO3. टेल मी, इसको हीट करने पे क्या मिलेगा? ये तो आंसर कतई नहीं होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी द आंसर इन. बोलिए. Sir, यहाँ MgO plus या C, MgO plus CaO plus CO2. यस, दैट्स द राइट आंसर. सो नोट्स नोट्स में पता ना वहां पे पानी कैसे आ गया. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर हाइड्रोजन कम्स. इट्स माय फॉल्ट, मतलब मैंने उसमें गलती लिखा था. हियर द रीजन बिहाइंड, ये लिखवाने के पीछे जो कारण था वो ये नहीं था कि मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि MgCO3 को हीट करके क्या मिलता है. कारण ये था कि मेरे को बताना था कि डोलोमाइट करके कुछ चीज होता है, और डोलोमाइट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, MgCO3 डॉट CaCO3. पता है हम लोग ये किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं? For ड्रॉपर्स कैन, metallurgy. यस, ड्रॉपर्स कैन गेस दिस. We are just preparing ourselves for metallurgy chapter also. तो वहां पे देखोगे आप तो मैं बताऊंगा, बोलूंगा कि बताओ भाई डोलोमाइट किसको कहते हैं, then you should be able to tell, yeah yeah sir, MgCO3 dot CaCO3, because we had read that in chapter of chemical bonding. इसीलिए बोलता हूँ डेली रिवाइज करो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट डाउन व्हाट वी विल गेट अपॉन हीटिंग कैलेमाइन. क्या सर आप भी मतलब कुछ भी करते रहते हो. कैलेमाइन क्या होता है? So calamine is nothing but ZnCO3. ZnO plus. ओ भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आंसर लिख रहा था. ओके, जस्ट टेल मी द आंसर. ZnO plus CO2. Yeah, so here the trick is not that we, it means a J advance is not going to ask you that, oh, just tell me what are we going to get after heating ZnCO3. It will ask that there is a compound X that is also known as calamine. Upon heating that compound, we are going to get a gas Y, which upon passing through lime water change its color to dash. So droppers can tell me, yeah, लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा तो क्या मिलेगा, कैसा कलर होगा उसका?
सब मिल्कीनेस आ जाएगा। यस, मिल्की वाइट। एंड पता है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा ही सवाल बनता है। आपसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा कभी भी कि ZnCO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं नहीं। वो बोलेगा कि भाई बताओ कि हम लोग कैलेमाइन को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। ओके। So what is Milky White? व्हाट इज मिल्की वाइट? दूधिया कलर जो होता है ना, दूध का जो कलर होता है पानी में, मतलब दूध का कलर जो होता है ना, जो व्हाइट, उसी को हम लोग मिल्की वाइट बोलते हैं। ठीक है। So तो उसका पता कैसे चलेगा कि मिल्की वाइट है? ये तो आपको दूध के कलर का दिखेगा, इसीलिए पता चल जाएगा। So एग्जाम में ओह, ये बात है, ये बात है। अरे भाई वेट कीजिए, वेट कीजिए एस ब्लॉक चैप्टर के लिए। मैं समझा। जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो कुछ भी कभी कलर पूछ सकता है, एग्जाम में तो दिया नहीं है मेरे को कि मैं बता सकूं। सो टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। There is a chapter called qualitative analysis. Okay, which will be our last chapter of this syllabus. In that chapter we will read कि किसका कलर कैसा होता है। एंड जेई एडवांस में हर एक साल 10 नंबर का क्वेश्चन उस चैप्टर से आता है, 5 या 10 नंबर का। मेरे टाइम में 10 नंबर का आया था। कभी कभी ऐसा होता है कि 12 नंबर का सवाल आता है उस चैप्टर से। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हेयर वी मतलब हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक तो कैलेमाइन और एक डोलोमाइट। तो आगे भी सीखेंगे। चलिए लिखिए, व्हाट वी गेट अपॉन हीटिंग कैल्साइट। लिखते रहिए। व्हाट वी विल गेट अपॉन हीटिंग कैल्साइट। ऐसा नहीं लिखना है, बस लिखना है कि कैल्साइट और इसको हीट करना है, डेल्टा सिंबल देके, और बताना है कि क्या बनेगा। तो हाँ, तो कैल्साइट पहले क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये। तो कैल्साइट हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कैल्साइट को हीट किए तो क्या मिलेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेई एडवांस, that it will never ask a straightforward question. ओके, सो इसको हिट करने पे क्या मिलेगा? CaO CaO plus CO. Yes. So these all questions are very tucha type, but I am just telling you because of their names. Okay, so write down सीडराइट को हिट करने से क्या मिलेगा? सीडराइट, SIDDERITE। सीडराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। सीडराइट हम लोग बोलते हैं FeCO3 को। इसको हीट करने पे जो मिलेगा वो तो आपको पक्का याद है, लेकिन इसको क्या कहते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। मतलब जो लड़का एकदम इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा होगा ना, उसको बोलो कि सिडराइट और 4 ऑप्शन दे दो, तो गलती से भी कभी FeCO3 को नहीं लगा सकता है। ठीक है ना, जिसमें सल्फेट होगा या तो उसको लगाएगा, या फिर तो सिलिकॉन के कार्बोनेट को सिडराइट बोल सकता है वो, क्योंकि ये S से स्टार्ट है। लेकिन आयरन के कार्बोनेट को बोलेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बोल सकता है। या सो डन। Yes, sir. Okay, so now write down the next one is semi-site. What we will get after heating semi-site? क्या क्या हो रहा है, कितना आसानी से जिंदगी चल रहा था, ये क्या से सीडराइट कैल्साइट आ गया। सो सेमी-साइट इज जस्ट PbCO3। PbCO3 is called semi-site. Done. Yes, sir. Yes. So now write down मेलाचाइट। क्या क्या है ये सब, मतलब कुछ भी। मेलाचाइट, आपको लग रहा होगा इससे आपका जिंदगी मुश्किल हो रहा है, बट
लेट मी टेल यू दैट इससे आपका जिंदगी बहुत आसान होने वाला है, बिकॉज मेट्रोलॉजी चैप्टर पढ़ने वक्त आपको इतना मजा आने वाला है जिसका मतलब कोई सीमा नहीं है। बस डेली डेली थोड़ा रिवाइज करना है 15-20 मिनट इनऑर्गेनिक को। सो मेलाचाइट का सर फॉर्मूला बताइए। तो मेलाचाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इसको हीट करने पे क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे आया डबल डबल सवाल। तो CuO, CO2H2O. यस, ये टूटेगा तो मिलेगा Cu+H2O, ये टूटेगा तो मिलेगा Cu+CO2, तो कॉमन हुआ CEO, फिर से CO2+H2O। या दैट्स द राइट आंसर। तो यह अब खत्म हुआ जो भी गंदा गंदा सब नाम था, बाकी सब नाम सही सही। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? बोलिए। Sodium thioxide. एक काम कीजिए, आप इसको लिखिए और खोज के मेरे को मैसेज कीजिएगा। बिकॉज अगर आप लोग इसको इसके बारे में सर्च करोगे देन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? मतलब मैं एक हिंट दे देता हूँ कि इसका यूज ब्यूटेन का कुछ होता है, मतलब गैस एलपीजी जो होता है ना, उसमें भी होता है। मे बी इसको थायोक्साइड बोलते हो, लेकिन आपको इसके बारे में पढ़ना है कि ये है क्या। ठीक है ना? बहुत अच्छा नाम है इसका, एम से स्टार्ट होता है, ये बता सकता हूँ। इसके आगे आप खोज लो, एंड टुमारो अगर जो खोज नहीं पाए वो याद दिला देना, मैं बता दूंगा। ओके, सो या राइट डाउन जेट लीड ऑक्साइड को हीट करने पे क्या मिलेगा? सॉरी, लीड ऑक्साइड को हम लोग बोलते क्या क्या है? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Galena. हाँ, ये लिथार्ज रेड होता है और मेसिकट येलो होता है। ये बस आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पी ब्लॉक में। इस पे सवाल भी आ चुका है एडवांस में एक बार, बट पीवीओ पे नहीं आया, लेकिन जेडएनओ पे आया है। और क्या गजब का सवाल बना था जेडएनओ पे, यू विल बी जस्ट मिसमराइज्ड। किया क्या ना वो, कि बोला कि कैल्साइट जो होता है, सॉरी वो क्या था उसका नाम, सेमीसाइट था ना जेडएनसीओ3 का। So calamine. ओ सॉरी, कैलेमाइन था। तो बोला कि कैलेमाइन को हीट किया एक आदमी, ठीक है ना, कोई लड़का, ठीक है, और उसका रूम बहुत ही मतलब उसके बाद से उसको वो कूल कंडीशन में रख दिया। ऐसा नहीं बोला, वो बोला कि कोई एक कंपाउंड दिया, ठीक है ना, उसको मतलब सबसे पहले हीट किया, और उससे जो प्रोडक्ट मिला तो उसको मतलब गैस से पास किया जब लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। ठीक है, यहाँ से वो बता दिया कि भाई ये कार्बोनेट है। उसके बाद से वो बोला कि उसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल गया तो जो रेसिड्यू बचा, वो पहले येलो था, ठीक है ना, और बाद में वो अचानक से व्हाइट हो गया। तो अब बताना है कि जो मतलब जिसको हीट किया वो सामान कौन सा था, और 4 ऑप्शन था, ठीक है ना। तो वो Zn CO3 ही था। तो Zn CO3 की इस प्रॉपर्टी पे ऐसा सवाल बना था, ठीक है ना। तो Zno जो है ये कोल्ड कंडीशन में व्हाइट होता है और हॉट कंडीशन में येलो कलर का होता है। डन। लिखा तो किसी ने नहीं होगा, लेकिन लिख लीजिए आप। In cold condition, Zno is going to be white, and in hot condition, it is going to be in yellow.
Done? Yes, sir. Okay. So now now write down the next topic, which is heating effect of metal nitrate. Done? Here I will also give you some questions and we will मतलब इसको हम लोग समझेंगे by the help of questions only. और इससे बड़ा सवाल आता है मतलब एडवांस में, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना आज, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. हो सकता है पूरा केमिकल बॉन्डिंग से सवाल नहीं है और इसी से आ जाए. ओके, सो डन. डन. Yes, टॉपिक sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. Okay, so write down in general, whenever we heat metal nitrate, then it is going to give us three compounds. That one of them is metal oxide, second one is NO2, and third one is O2. And here the most important thing is that the color of NO2 is brown. NO2 is called brown gas. Na2 का कलर ब्राउन होता है, इसको आप तो जल्दी से नोट कीजिए. डन. Yes, sir. Okay, so write down exceptions also. अच्छा, ये NO2 का कलर आप लोग लिख लेना जरूर. क्योंकि आईटी में वही पूछा था. मैं बताता हूँ ना, अब बोला कि एक कंपाउंड है, उसको हीट किया तो ब्राउन गैस निकला, तो वहां से समझ में आ गया कि भाई वो तो नाइट्रेट है. Sir, brown Br2 भी होता है. हाँ 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 हाँ, मे बी दैट मे बी ब्राउन Br2 भी होता है, ब्राउन और भी सारा चीज होता है, बट उसमें हिंट ऐसा दिया हुआ होगा और भी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो ब्राउन गैस नथिंग बट NO2 ही है. ओके, क्योंकि किसी भी मेटल के कार्बोनेट या नाइट्रेट को हीट करने पे ब्रोमीन तो निकलेगा नहीं, इतना तो पक्का है. नहीं. Yes, sir. या nice that you have remembered that bromine is brown, chlorine is yellow, sorry, Yes, sir. green. Sir, and I. So yellowish green Yeah, yellow is green. and I violet black. Yeah, so write down the exception for metal nitrate. For sodium to cesium, their nitrates will not give us metal oxide, but it will give us metal nitrite and plus O2. This O2 gas will be evolved along with the nitrite of metal. It is not going to give us metal oxide. Okay. Okay, sir. लिथियम वाला में लोचा है, सोडियम तो सीजियम है, लिथियम नहीं है. सो लिथियम वाला को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड ही मिलेगा, लिथियम नाइट्राइट नहीं मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर देखिए, सबसे ऊपर Ag और Ag का कंपाउंड डिकम्पोज इनटू मेटल्स. ठीक है ना? तो जस्ट हम लोगों ने जैसे पढ़ा कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स वाला पढ़ा, फिर से हाइड्रोक्साइड्स वाला पढ़ा, वैसे ही Ag का नाइट्रेट्स जो होता है ना, उनको हीट करने पे मेटल्स मिलता है, मेटल ऑक्साइड नहीं मिलता है, because their metal oxides are not stable, they are thermally unstable. Do you get my point? Yes, sir. Okay, so let's write down these things. If you are writing in rough notebook, then जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कैसे भी घर पे फेयर बना लीजिएगा. जितना एफर्ट मार सकते हो यार, यही 2 साल है, पूरा एफर्ट मार लेना, कुछ भी छोड़ना मत.
मतलब ऐसा नहीं हो कि बाद में लगे कि यार उसमें मेहनत नहीं की. Do whatever you can do. So write down a special case. Special cases. First one is that whenever we heat copper nitrate, then if temperature is less than 800, then it is going to give us copper oxide in which oxidation state is +2. But when temperature is more than 800, then it will give us copper oxide in which oxidation state of copper is +1. So their formulas are going to change. So it may be possible that it is not given the temperature, any specific temperature in the question. बट या अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, देन आपको कॉपर का +1 वाला ऑक्साइड बना के आना है. समझ में आया ना? बोलो भाई. So can you repeat, please? या कॉपर नाइट्रेट को अगर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हम लोग को कॉपर ऑक्साइड मिलेगा जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा कॉपर का. लेकिन वही अगर हम लोग 800 से ज्यादा, जैसे मान लो कि 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं या फिर 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, तो फिर से वहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऑक्साइड में +1 होगा. इसको हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं. इसका कलर रेड होता है. तो इसको अभी छोड़ते हैं, इसके कलर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर में. ओके. लेकिन अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर रहे हैं, देन हम लोग को ऑलवेज Cu2O लगा के आना है. ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब क्या, 800 से तो ज्यादा ही होगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बोल रहे हैं कि ज्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब 2000 पार हो गया, तभी उसको हम लोग ज्यादा बोलते हैं. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है 100 पार हो गया तो ज्यादा बोलेंगे उसको. ओके. Yes, sir. हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, कि सोडियम नाइट्रेट है, उसको अगर हम लोग 500 पे हीट किए तो जो हम लोग को मिलना था वही मिलेगा, NaNO2+O2, क्योंकि ये एक्सेप्शन था. लेकिन अगर और भी ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए ना, तो NaNO2 ब्रेक कर जाएगा, और NaNO2 ब्रेक करके क्या बनाएगा, Na2O+N2, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा. ठीक है. Yes, sir. हाँ, लेकिन इसमें तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर NaNO3 को हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में हीट किए तो फिर से उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगा. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. So whenever we heat NaNO3 in presence of sodium, then it's not going to give us oxygen. Do you get my point? Yes, sir. Okay. So just write down this. Guys, all these things seem to be very easy at first sight. But believe me, if you are not revising your notes daily, then you will easily forget all these points. Okay. So I would suggest you that read the notes daily. Even for half an hour, it will work. Studying before the class, only before the class, is not going to help you anyway. Because before the class, you will read only what is going to be taught today and what was taught yesterday. But whenever you read daily, then you may be able to read the chapters which were taught previously. Means you may be able to revise periodic table instead of chemical bonding, and that is going to help you. Okay, guys. So let's write down the next thing, that whenever we heat potassium nitrate in presence of potassium, it's not going to give us oxygen. It's going to give us potassium oxide plus N2. And yeah, these all compounds formed are very important, because in JEE Mains it may ask that A and B are formed. Find the sum of molecular mass of A and B.
And if you don't know what are A and B, then how can you find the molecular mass? Clear? Is it clear? रिपीट करना एक बार। हाँ, मैं बोला ना कि ये जो बन रहे हैं कंपाउंड्स, ये याद करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे याद होगा? तो 500 पे हीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर कर देंगे तो ये टूट जाएगा। ये टूटेगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब जी मेंस में क्या करेगा, बोलेगा कि सोडियम नाइट्रेट को हम लोगों ने सोडियम के प्रेजेंस में हीट किया और दो कंपाउंड बने, एक बना ए और एक बना बी। ए का मोलिकुलर मास है, अब आपको बताना है कि ये फाइंड द सम ऑफ द मोलिकुलर masses of A and B. So first of all, you should know what are A and B, then only you can find the molecular mass. Now is it clear? Yes, sir. Okay. So ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे सर को लगता था कि जी एडवांस में पूछेगा, लेकिन पूछा नहीं। तो बेरिलियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे, टेम्परेचर याद रखना ज्यादा जरूरी है। 120 से 125 पे तो बनेगा बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है Be4O NO3 6। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा केस है जहां ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है। सो जस्ट राइट डाउन। भाई कितना है जी? ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। Okay, so means if basic beryllium nitrate is further heated, then we will get the compound which we मतलब जो हम लोग को लगेगा। जैसे बेरिलियम नाइट्रेट को हीट करने पे मिलना चाहिए था यही, लेकिन कम टेम्परेचर पे हीट करने पे हमको मिला ये नहीं, बल्कि बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट को फर्दर अगर हम लोग हीट करें और ज्यादा टेम्परेचर देके, तो फिर से ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वही मिलेगा जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब बेरिलियम नाइट्रेट को हीट करने पे हम लोग यही ना एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका ऑक्साइड मिलना चाहिए प्लस NO2 प्लस O2, तो देखिए वही मिला। लेकिन इंटरमीडिएट में हम लोग को बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट मिलता है। ओके, सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि बेरिलियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट कर दिएगा, तो स्ट्रांगली हीट कर दिएगा मतलब कि फाइनल कंपाउंड तो हम लोग को यही मिलने वाला है कि बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, मतलब इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा घर पे जरूर, 1-2 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में, बट या इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो हेयर मतलब जल्दी जल्दी इस एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो हेयर लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट किए तो इसका ऑक्साइड बनना चाहिए प्लस NO2 प्लस O2, एंड या NO2 NO2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक। yesterday someone asked a question that O2 minus is paramagnetic or diamagnetic। सो O2 माइनस का तो नहीं पता अभी, लेकिन O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ये पता चल गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। ओके, सो जैसे बेरियम नाइट्रेट है तो इसको हीट करने पे जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या है कि इसका ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। लिथियम नाइट्रेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग कहेगा कि अरे अल्कली मेटल्स का तो नाइट्रेट LiNO2 देता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। सोडियम से सीजियम तक नाइट्राइड देता है। लिथियम तो अपना ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 ही देगा। फिर से सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट मैंने क्या बताया था कि सिल्वर और मरकरी इन दोनों के नाइट्रेट को हीट करने पे मेटल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मेटल मिल गया Ag, नॉट AgO या Ag2O, ठीक है ना, और NO2 प्लस O2 निकल गया।
फिर से जिंक के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बस इसका ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था सिल्वर के नाइट्रेट को हीट करने वाला, लिथियम के नाइट्रेट को हीट करने वाला, बाकी सब तो जनरल वाला है। नाउ समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. हाँ गाइस, आई एम रियली सॉरी दैट मतलब मैं ये क्वेश्चंस आप लोग को नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, बट मेरे सर ने मुझे ये क्वेश्चंस दिए थे क्लास में करने के लिए। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर होम बाय योर ओन। मतलब जब भी आप फेयर बना रहे हो ना, तो प्रोडक्ट्स आप खुद से लिखो, मतलब ऐसा कर लो कि नोट्स ढक लो, एंड देन राइट द प्रोडक्ट बाय योर ओन, एंड देन मैच। मैच कर गया तो सही है, नहीं मैच करा तो फिर से क्लास में पूछेंगे कि सर ये डाउट है। Okay, so now write down next topic, which is heating effect of ammonium ions, NH4 plus ions salt। ऐसा सॉल्ट जिसमें NH4 प्लस हो, उनके हीटिंग इफेक्ट, उनको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू IIT JEE एडवांस। ओके, सो आई गेस आपने लिख लिया होगा। Yes, sir. हाँ, तो अभी आप ऐसा करो कि ऐसे दो ऐसे एरो बना दो, और एक तरफ लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एनायंस और एक तरफ लिख लो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। लेट मी सी हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट, otherwise I will just stop here. Yeah, I think I should stop. इसको पढ़ा के मैं मतलब आज रोक दूंगा। So just write down oxidizing anions and non-oxidizing anions, and yeah, non-oxidizing anions जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको याद करने का जरूरत नहीं है। हम लोग बस ये याद कर लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन सा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग बस 5 ही हैं। समझ में आया? Yes, sir. There are Yes, sir. only 5 oxidizing anions, so मतलब it's wise decision to remember only these, because you can't remember all the non-oxidizing anions because they are quite a lot in number. Okay guys, so we will join again and we will just complete this. After that we will just close, so please join again.